नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे इमामी के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स की, जहां पर थोड़े मिक्स नंबर्स रहे, क्यों रहे और आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट की, उनसे करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले 24 घंटे में करीबन 103 से लेकर $108 प्रति बैरल के बीच में हमने यहां पर रेंज बनते हुए देखी है। आगे जाकर जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, कमेंट्री है, कैसा रह सकता है क्रूड ऑयल, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इमामी के सीईओ फाइनेंस NH भंसाली, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा एंड एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इमामी के नंबर्स पहले ऑन बोर्ड यहाँ पर डाल लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर NH भंसाली हैं। मिस्टर भंसाली, अगर हम वीक समर देखें या अनसीजनल रेंज जो मार्च में देखने को मिली, उसका इम्पैक्ट आपके समर पोर्टफोलियो पे देखने को मिला है, रेवेन्यूज पर भी है, कैसे देखते हैं आप इसे? सही कहा आपने। वीक समर इज अनप्रेसिडेंटेड समर, इनफैक्ट वेरी डिसरप्टेड। तो उसका इम्पैक्ट बहुत रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल मार्केट में भी फ्रॉम 28th of February, the last month, that the international market also was dented, the performance there. So overall हमारा इसी के लिए हमारा फिर for this quarter the performance has not been to our expectation also. But we understand that this is a one-off aberration, and going forward, we believe it has to perform very well. In fact, so current में भी quarter में भी अभी summer has started setting in, and so we expect reasonable growth in the first quarter. Couple, so there is an impact of base, and as well as the international business के लिए भी we have also done lot many workarounds in terms of changing the routes or price increases, and many steps have been taken in terms of procuring materials also in advance, or many protective steps have been taken. So we expect good growth now going forward. मिस्टर बंसाली, अगर यहाँ पर मेल ग्रूमिंग एज अ सेगमेंट को देखें तो यहाँ पर क्या सेंस है और यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज हैं? Yeah, so in male grooming, no, we have our all core brand as well as we have our strategic investments also. So both taken together, we expect an aggressive growth there. Male grooming में जैसे creams और face washes जो mainstream है, उसमें थोड़ा सा pressure रहता है, but still going forward because of the strategic investments where we have made in the Man Company, Brillare and all. They are also expected to do the new age, and our core brands both are expected to do very well there. मिस्टर बंसाली, अगर हम वेरियस सेगमेंट्स को यहाँ पर देखें तो पेन मैनेजमेंट, केश किंग, हेल्थ केयर रेवेन्यू में यहाँ पर पॉजिटिव्स हैं। यहाँ पर आगे जाकर किस तरह के प्लान्स हैं और क्या स्ट्रैटेजीज? Yeah, तो core जैसे आपने सही कहा, it has grown by 11% in this quarter, and that trajectory would continue. So while there could be a seasonal variation somewhere, summer and some winter, because kind of BoroPlus and all those BoroPlus, Chyawanprash are more winter-led products. तो उसका थोड़ा सीजन से इम्पैक्ट आता है, बट ब्रॉडली इफ यू लुक एट द फुल ईयर, वी एक्सपेक्ट good growth because there had been the disruptions which we believe were the aberrations for the last year, and also जो international business में भी हुआ, जो geopolitical conditions का, that many of these things that we have reworked internally to reroute, and many of the things have been, we have found out the different ways of dealing with them. मिस्टर बंसाली, वुड बी इंटरेस्टिंग नो कि आपने जो न्यू वेंचर्स यहाँ पर पिछले कुछ समय में लॉन्च किए हैं, उसका इंटीग्रेशन कोर बिजनेसेस के साथ कैसा होता हुआ दिखा है? जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट जैसे ही ये जितने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें हमारे जो प्रमोटर्स, जो उनके जो पैशनेट प्रमोटर्स है, वो भी कंटिन्यू करते हैं। देन वी ओवर ए पीरियड वी टेक इट ओवर एंड विथ अ वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो 2 of the companies have become our 100% subsidiaries, and third one, the Axiom, the beverages company, also we expect to make it our 100% in this current year itself. So many of this, along with the professional management and the promoter support, we expect this businesses also to do very well. These are all high growth categories, and other than the core categories where we are present. So growth का जो momentum है, यहाँ से भी अच्छा आएगा। ये कोई और प्लान्ड एक्विजिशंस हैं यहाँ पर इन द पाइपलाइन जिसके बारे में इन्वेस्टर्स जानना चाहें? जी, if you have seen the last announcement which we have done about the Inknut Digital, so where there are 2 brands, Vedics and Skincraft, that also we have announced, and we are on road to complete that acquisition very soon. So that would also become our subsidiary very soon, maybe in few days.
So all these strategic investments, along with the core businesses, along with international business, and on the top of the base impact which we have had in the previous year, we expect good growth to come in. While there could be challenges in terms of materials, cost of materials, right? So the crude-based packaging materials or जो imported या कुछ आइटमों में, लेकिन that we have factored in with somewhere very balanced approach we have taken. कहीं prices increase हुए, international prices market में भी prices को बढ़ाया है. But despite this, and we have also considered an impact on gross margins which were reduced. But then overall, because of the economies of scale, we expect good EBITDA growth also. It may not be to the tune of turnover growth, but it would still be there. We expect a growth there in EBITDA as well, despite these challenges. पॉइंट टेकन। मिस्टर बंसाली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें उन नंबर्स के थ्रू जाने के लिए। तो क्लियरली पिछले क्वार्टर में कुछ यहाँ पर कंसर्न जरूर रही हैं, लेकिन आने वाला क्वार्टर बेसिकली करंट क्वार्टर में यहाँ पर वो दिक्कतें दूर होती हुई नजर आई हैं। इनपुट कॉस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ी है, लेकिन कंपनी अपना कोर स्ट्रेंथन करने में लगी है, न्यू वेंचर्स यहाँ पर ऐड कर रही है, इंटरनेशनली भी यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज मूव होती हुई। वेल, ये तो बात हुई है मामी की, जहाँ पर नतीजे यहाँ पर उम्मीद से हल्के से कम ही आए हैं, लेकिन करंट क्वार्टर में बेहतर मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन। रुपया आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि बड़े गेन्स हमने वहाँ पर आते हुए देखे हैं। कल परसों रादर 96.96 का ऑल टाइम लो बना था, तो 96.96 से यहाँ पर ₹1 और करीब करीब 10 पैसे जैसे कि हमने इम्प्रूवमेंट इन द डे यहाँ पर आते हुए देखी है। कल की क्लोजिंग भी यहाँ पर को पॉजिटिव थी। आरबीआई ने ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स भी उठाए हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट वेनेला लिक्विडिटी इंजेक्शन, स्वॉप्स की बात की गई है, इंटरेस्ट रेट्स की बात की गई है, जो प्राइमरी डीलर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी लेवरेज दी गई है। तो 3-4 जो बड़े मेजर आए हैं उसका सीधा असर यहाँ पर एज ए सेंटिमेंट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा है। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं रुपए को, और जिस तरह से सारे स्टेप्स आए हैं, रुपए में एक इंप्रूवमेंट है, लेकिन द मेजर क्वेश्चन यही है कि क्या ये इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल है? सही बात की आपने। सस्टेनेबिलिटी काफी मुझे दिक्कत की लग रही है, क्योंकि कच्चा तेल कंटिन्यूसली ऑन एन एवरेज $90 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, जो इंडिया के लिए ट्रेड डिफिसिट में बड़ा योगदान है। गोल्ड भी अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी है गोल्ड में भी, और प्राइस ₹1 पर सस्टेन हो रहा है, तो ये प्रेशर कर रहा है आईएनआर पे। और मेरे हिसाब से ये छोटी अवधि के लिए में भी 95 के लेवल्स दिखा देगा, बट आगे चल के मुझे लगता है कि फिर से ये 97 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो सकता है। मेरा ईयर एंड टारगेट 97 प्लस है, और अगर कच्चा तेल $100 के इर्द टिका रहा और 2 से 3 महीने और, तो डेफिनेटली आप 100 के आंकड़े ट्रिपल डिजिट में देख सकते हो आप रुपए को। तो शॉर्ट मोमेंटम है, मे बी नो डाउट आरबीआई इंटरवेंशन के कारण 95 के लेवल्स आ सकते हैं, बट लॉन्ग रन में 97 to 100 के लेवल्स आप देख सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई भी गिरावट हो डॉलर में, अच्छी लेवल है बाय इनिशिएट करने की और डॉलर में होल्ड करने की। ऑलराइट, तो यानी कि आज का दिन 2 दिन अब बेहतर रहे हैं और 95 तक भी शायद यहाँ पर रुपया जा सकता है, लेकिन जो प्रेशर है वो अभी भी ऑन द डाउन साइड। और मेजर कंसर्न्स ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रूड ऑयल की तरफ से आती हुई। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। जहाँ तक क्रूड की बात है, दोनों तरफ से अभी भी काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जारी हैं। कभी आता है कि पीस डील हो ही रही है, बातचीत बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, और उसके बाद फिर हम यूरेनियम पे, ओमान पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टोल पे आके अटक जाते हैं। किस तरह से आप ये सारा कुछ रीड कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं क्रूड प्राइसेस? देखिए, अगर आप बाजार को देखिए, बाजार ने तो काफी रिस्ट्रेन भी दिखाया है, मैच्योरिटी भी दिखाई है, लेकिन हकीकत यह है कि जो तेल का बाजार है, तेल की दुनिया में अभी वो कन्विंस नहीं है कि कहीं जो है वो ईरान और अमेरिका खास तौर से, और पीछे कहीं ना कहीं इजराइल, ये शांति की तरफ बढ़ रहे हैं या जल्दी कोई शांति हो जाएगी। खबरें आती हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां गए, उनके आर्मी के चीफ वहां गए, लेकिन बाजार उन सब से संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है ये सब जो मीडिएटर हैं वो लाइट वेट हैं, इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, और क्रेडिबिलिटी की भी वहाँ पे जो काफी बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब बयानबाजी में जो है वो उनका जारी है, उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से जो वहाँ पे जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको ले लेंगे और उसको खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह। तो इसका कारण है कि जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार, आपने देखा, बीच में नीचे जाती हैं, लेकिन जो है वो फिर ऊपर चली जाती है। हालांकि तेल बाजार में अभी उन्होंने पैनिक बटन नहीं दबाया, ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। अगर पैनिक बटन दबाते तो तेल जो है वो $135-140 पर बैरल पे होता, लेकिन पैनिक बटन नहीं दबाया है। लेकिन जिस तरह से बातें आती हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है टोलिंग करेंगे ईरान और ओमान मिला करके, और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो ट्रैफिक है टैंकर्स का, वो उसमें कोई सिग्निफिकेंट कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो बाजार इसको लेके मायूस भी, और बाजार बिल्कुल जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बल्कि वो लोग
जिनका मानना है कि शायद सेकेंड राउंड ऑफ जो वॉर है वो दोबारा हो सकती है, अर्थात अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है, उसको भी काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। यही सब कीमतों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से कीमत जो है बहुत ऊपर नहीं गई है वो ये है कि नॉन गल्फ कंट्रीज से जो तेल का उत्पादन है और तेल की सप्लाई है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें भारत शामिल है, वो उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से बढ़ पाएगी। तो नॉन गल्फ कंट्रीज से जो तेल के जो आवागमन है, तेल की सप्लाई है, भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, जापान जैसी अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ी है, जिसमें अमेरिका शामिल है, गुयाना शामिल है, वेनेजुएला शामिल है, ब्राजील शामिल है, नॉर्वे शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, अंगोला शामिल है। तो ये सारे जो खाड़ी के देश नहीं है लेकिन बड़े तेल के उत्पादक हैं। भारत में भी काफी बड़ी मात्रा में इन लोगों से तेल लेना शुरू किया और वो तेल पहुंचना शुरू हो गया है भारत। तो इससे लेकर के जो एक ये था कि शायद अगर गल्फ का 15% तेल चला गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भारत का आपने देखा थोड़ी सी खपत में कमी आई है, जो नया डेटा है, लेकिन साथ में जो हमारी सोर्सिंग है तेल की वो अमेरिका से बढ़ गई है, वेनेजुएला से बढ़ गई है, गुयाना से बढ़ गई है, अन्य देशों से बढ़ी है। इसीलिए पैनिक नहीं है, लेकिन जो कीमत है उसमें बेचैनी है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, लैंडस्केप में कहीं कोई आशा की किरण फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। इन सबके चलते अगर हम ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स यहाँ पर देखें तो 85 से लेकर 105 के बीच में उनको लगता है कि कच्चा तेल इस साल में एवरेज कर सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये अगर जो है दोनों चीजें, अगर मान लिया अमेरिका दोबारा हमला करता है ईरान के ऊपर, तो वो हमला जो अभी तक हुआ है उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा, अर्थात वो आर पार का होगा। फिर अमेरिका तभी हमला करेगा जब उसको पक्का यकीन हो कि वो ईरान को पूरी तरह धराशायी कर सकता है। और अगर ईरान को वो धराशायी कर देता है और तो फिर तो 1-1.5 साल के बाद तेल की कीमतें $60 पर बैरल हो जाएंगी, क्योंकि ईरान का तेल जो है वो सारा बाजार में आ जाएगा। तो अगर मान लिया वो ऐसा नहीं करता तो दूसरा ये है कि कोई समझौता हो जाता है, और अगर समझौता होता है तो भी जो है एक समय के बाद तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, क्योंकि पश्चिम कंपनियों का, अमेरिकी कंपनियों का ईरान के तेल के बाजार में घुसना वो भी उस एग्रीमेंट के अंतर होगा, फिर उसके साथ साथ ही होगा। कहीं ना कहीं अमेरिका चीन को उस पूरे इलाके से जो है कमजोर करना चाहता है, जिसमें ईरान भी शामिल है। और दूसरी तरफ जो नॉन गल्फ कंट्रीज हैं उनकी जिस हिसाब से सप्लाई बढ़ रही है, अमेरिका का भारत के ऊपर दबाव भी है कि आप हमसे और एनर्जी खरीदिए और तेल खरीदिए। अगर इकोनॉमिक सही होती है तो भारत को तो नेशनलिटी तो भारत नहीं देखता है, भारत तो ये देखता है कि दाम क्या है और सप्लाई के टर्म्स क्या है। अगर अमेरिका बेहतर देता है तो बहुत अच्छी बात है, रशिया दे देता है वो भी बहुत अच्छी बात है, जो भी देता है उससे तेल लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो आपने बताया, मेरा भी मानना है कि अगर जो है युद्ध होता है और अगर धराशायी युद्ध होता है, ईरान को धराशायी कर दिया जाता है, या युद्ध नहीं भी होता, इस तरीके से चलता है, तो तेल की कीमत जो है वो $100 के आसपास घूमेंगी। बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि खाड़ी के देशों के तेल के ऊपर निर्भरता से जितनी बेचैनी पैदा हुई थी वो उतनी उसको नॉन गल्फ कंट्रीज ने जो है संभाल लिया, सप्लाई ने संभाल लिया। लेकिन एक चिंता सिर्फ है बीच में इंटरिम, वो ये कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है तमाम देशों के, वो काफी खाली हो गए हैं। उनको भरने के लिए भारी मात्रा में ये देश आएंगे और तेल को खरीदेंगे। उस दौरान वो जो 1 महीना होगा उसमें तेल की कीमतें जो है वो $110 भी जा सकती हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को दोबारा भरने के लिए। लेकिन अभी हो सकता है वो भी इसका इंतजार करें कि शायद ईरान का कुछ हो जाए या जो और देश हैं वो अपनी सप्लाई को बढ़ा दे। चिंता बहुत, लेकिन जैसे मैंने कहा पैनिक बटन दबाने की या बहुत घबराने की जरूरत नहीं। मिस्टर रेंजल, जैसे आपने कहा कि अब खाड़ी देशों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंस नहीं है, क्या हम एक चेंजिंग ऑयल वर्ल्ड मैप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? मनीषा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब हम ये तो देख रहे हैं कि पूरा जो ऑयल सप्लाई का जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम था और उसका जो एक नक्शा था उसमें बदलाव तो आ रहा है। तमाम ऐसे देश हैं उनका ये मानना है कि अब जो है खाड़ी के देशों पर अपनी निर्भरता को कम करो, और जो नॉन गल्फ कंट्रीज है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज है, वहां से हो सकता है समय ज्यादा लगे, अर्थशास्त्र बदल जाए, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो काफी कम हो जाएगा, तो वहां से तेल ज्यादा मंगाओ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, गुयाना, ब्राजील ये सब भी शामिल हैं और अफ्रीका के देश भी शामिल हैं, और दूर दराज के देश जैसे नॉर्वे और रशिया वो भी इसमें शामिल है। तो वो सब तो रीड्रॉ हो रहा है। हमने देखा है इंग्लैंड ने, जिसने बड़ी फोर्सफुली रूसी तेल पर सैंक्शंस लगा दी थी, उन्होंने अपनी सैंक्शंस को परसों हटा दिया, इंग्लैंड जैसे कंट्री ने जो सबसे ज्यादा वोकल था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये रियलिटी आ रही है कि तेल की कीमतें ज्यादा होती हैं तो अर्थव्यवस्था को जो है वो स्ट्रक्चरली और फंडामेंटली डैमेज करती हैं उससे, इसलिए जो एक सीमा से ज्यादा तेल का जो वेपनाइजेशन नहीं करो। तो एक नए एनर्जी ऑर्डर का जन्म हो रहा है, उदय होना शुरू हो चुका है, और जो न्यू इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्डर होगा
उसकी डिपेंडेंस जो है मिडिल ईस्ट पे या पर्शियन गल्फ कंट्रीज में पहले के मुकाबले सिग्निफिकेंटली कम होगी। हालांकि भारत को देखना होगा, चूंकि वो हमारे लिए बहुत नजदीक है, वहां से 4-6 दिन में तेल आ जाता है, कि क्या ऐसी उस पर्शियन गल्फ के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जिनसे अपने ऐसे संबंध बना सकते हैं कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज या दोबारा जंग होता है तो सप्लाई भी सिस्टम ना पड़े। और उसके तहत भारत जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो फुजैरा से सप्लाई और ओमान से सप्लाई उस पर बहुत गौर देख रहा है और उसके अर्थशास्त्र को भी बड़े गहराई से भारत उसका अध्ययन कर रहा है। बहुत शुक्रिया मिस्टर तृजा साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक हायर प्राइसेस यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन एक चेंजिंग वर्ल्ड मैप एब्सोल्युटली हमारे सामने यहाँ पर आता हुआ। धर्मेश, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं क्रूड प्राइसेस नियर टर्म में? देखिए, अगर आप देखिए कच्चा तेल कंटिन्यूसली WTI देखिए तो $100 से लेके $95 के इर्द गिर्द घूम रहा है, और अगर ब्रेंट की बात करें तो 100 से 110 का दायरा है। बट अगर आप आगे के सारे महीने देखें तो स्पेशली अगर आप अक्टूबर तक के महीने देखें तो ऑलमोस्ट $80-85 पे आके, यानी $15 से $20 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल रही है। इसका मतलब है कि मार्केट बैकवर्डेशन में चल रहा है और फंडामेंटली मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश काफी कम है। जिस तरह नरेंद्र ने भी कहा है कि यहाँ पे फंडामेंटल करंट सिनेरियो में ज्यादा हाई है, ना कि आगे के महीने में। तो सप्लाई डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। कोई भी वॉर नहीं चाहता है और कहीं ना कहीं समझौता होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस कारणवश आप देखिए कि आगे के महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। तो फंडामेंटली मैं सलाह दूंगा कि आप यहीं पे भी 9,500 के लेवल पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 9,600 का स्टॉप लॉस रखिए और 9,100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है कि 8,800 से लेके 8,500 के स्तर आपको कच्चे तेल में देखने मिल सकते हैं, जो इंडिया के लिए फायदे का सौदा रहेगा। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली की राय यहाँ पर कच्चे तेल में आती हुई धर्मेश की तरफ से, और जैसे कहा है कि यहाँ पर गिरावट और भी कच्चे तेल में बन सकती है। आज एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स 1% की तेजी के साथ कारोबार, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो धर्मेश होंगे हमारे साथ, बात करेंगे मेटल्स पे। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद। विकसित भारत का रोड मैप, इस भव्य मंच पर जुड़ेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री, दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स, जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच एक विजन देखिए, भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10 बजे से सिर्फ CNBC आवाज पर। 2047 तक विकसित भारत टारगेट सेट है, पर क्या है रोड मैप? माइक्रो से मैक्रो लेवल पर और क्या सुधार करने होंगे? एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए कौन से माइलस्टोन्स हासिल करने होंगे जरूरी? आने वाले 21 सालों में कैसे पूरा होगा ये मेगा विजन? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे इंडिया के टॉप इंडस्ट्री लीडर CNBC आवाज के महामंच भारत इकोनॉमिक संवाद में, और तैयार करेंगे विकसित भारत का ब्लूप्रिंट। एक मंच एक विजन और विकसित भारत 2047। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद सिर्फ CNBC आवाज पर। सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर कारोबार है। आपको याद दिला दें कि जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, सोने में 13 और चांदी में 20% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। धर्मेश, यहाँ पे कैसे देखेंगे आप ट्रेंड्स को? देखिए, ये जो हफ्ता था वो बॉन्ड का हफ्ता था। इस कारण आप देखिए बॉन्ड जो 10 ईयर्स यील्ड है, ट्रेजरी यील्ड्स और 30 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड है, वो काफी शार्प रैली कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 4.5 और 10-30 साल की जो ट्रेजरी यील्ड है वो 5 पे आ चुका है, जो ऑलमोस्ट 1% की मुनाफा वसूली से मार्केट फिरा हुआ है। तो इस कारण आप देखिए कि कमोडिटी मार्केट में स्पेशली जो सेफ हेवन गोल्ड है, इसमें आपको एक प्रेशर देखने मिला और प्राइस मार्केट में काफी स्टीप फॉल दिया है। करंटली मार्केट संभला हुआ है, एक टेम्पररी सिनेरियो है। अगर आप देखिए इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ से स्टीपर नहीं होता और फ्लैट रहता है तो सोना यही लेवल पे टिका रहेगा। बट अगर रेट कट की बात आती है तो आप देख सकते हो कि फिर से सोने में और चांदी में तेजी आने की गुंजाइश है। फंडामेंटली मार्केट में 2027 और 2026 के अंतराल तक रेट कट आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से सोना ये एक अच्छा बार्गेन बाय है। करंट लेवल पे भी आप देखिए मार्केट में एक अच्छा डिस्काउंटेड रेट चल रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 4,500 का स्तर है जो मार्केट कंटिन्यूसली टिका हुआ है। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,58,000 1,55,000 के जो लेवल्स है मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहे हैं।
इसमें ऑलमोस्ट 10% की वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है इसमें मार्केट ने प्राइस पैरिटी की है। बट मेरे हिसाब से करंट लेवल भी अच्छा लेवल है, यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग। 1,58,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और पोजिशनली बाय करे तो 1,62,000 तक के लेवल्स आपको सोने में बाय साइड में देखने मिल सकते हैं। और रही चांदी की बात, तो चांदी भी काफी फॉर्म में $75 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन रखा है। 2,70,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। 2,77,000 से लेकर 2,80,000 के लेवल्स आपको चांदी में देखने मिल सकते हैं। तो दोनों मेरी बाई की रिकमेंडेशन रहेगी सोने और चांदी में। ऑलराइट, तो खरीदारी करके सोने चांदी में कारोबार करना है, रुपया कुछ और डिप्रिशिएट हो सकता है, कच्चे तेल में बिकवाली करके काम करें, ये राय ऑफ कोर्स धर्मेश की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बस इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। Go Power